Hello my dear lovely students, how are you all? I hope you are well, fine, good and healthy. Okay, welcome back to your online classes my dear students. In today's this video we are going to learn about EVS first chapter. Okay, tell me what is the name of the first chapter, do you know? Okay, don't worry, I'll say you. The name of our first chapter is Living and Non-Living Things. What is the name of a first chapter? The name of the first chapter is Living and Non-Living Things. Living and non-living thing means the thing who has life is known as living things. The things which do not have lives, it is called non-living things. To know more about living and non-living thing, we will see in this chapter. Okay? So are you ready to start the chapter? So without wasting much of our time, come we will start our today's chapter number 1, living and non-living things. Okay? Okay my dear students, come we will start our today's chapter number 1, living and non-living things. Before starting the chapter, let me tell you one thing my dear students. When I will read the chapter, you will keep your finger on the line. This will help you to know that where I am reading. Okay? So keep the pencil also with you, that if we will find some hard words, we will underline the hard words. Okay? Okay, now first we will see introduction. We observe different kinds of things in our house. We have pets like dogs and cats. We have our favorite toys. There are tables, chairs, sofa, vessels, television and so many other things. If we call our dog by its name, what does it do? Now here it is given that we observe different kinds of things in our house. हम हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सोफ़ा, टेबल, फिर फैमिली मेम्बर्स, आर फेवरेट पेट्स. हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर में देखते हैं. ठीक है. वी हैव आर स्मॉल पेट्स ऑल्सो. हमारे पास छोटे छोटे पेट्स रहते हैं ना. पेट मीन्स जो पालतू जानवर हम घर में रखते हैं, लाइक कैट एंड डॉग. इफ़ यू हैव एनी डॉग, यू कॉल इट्स नेम एंड व्हाट ही विल डू, ही विल कम टू यू. ओके, अगर अपने डॉगी का नाम लिए बुलाए तो वो क्या करेगा, वो आपके पास आएगा. ओके. इट कम टूवर्ड्स अस. बट इफ वी कॉल आवर टॉय बाय इट्स नेम, इट डज नॉट नो टू मूव. व्हाई? The dog moves and comes to us because it is a living thing, and toy does not come towards us because it is non-living thing. Now here we call to our dog and it comes to us. But if we call to a toy, अगर हम अपने डॉगी को बुलाते हैं और वो अपने पास आता है तो वो लिविंग थिंग है. क्यों? क्योंकि वो सुन सकता है, चल सकता है. ओके. बट सेम थिंग अगर अपन अपने टॉय को बोले, टॉय जिससे हम खेलते हैं, अगर अपन अपने टॉय को बोले तो फिर वो अपने पास आएगा? नो, बिकॉज ही कांट हियर. वो नहीं आएगा क्योंकि वो सुन नहीं सकता है. ही डज नॉट हैव फीलिंग्स. इट इज नॉन लिविंग थिंग. ओके. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड आउट द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इस पिक्चर में से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हमें फाइंड करना है. थिंग्स लाइक टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, कार, टेबल, चेयर, स्टोन, शूज, bicycle and clothes are non-living. Now my dear students, things like television. Television is a hard word. So what you will do? You will take pencil and you will underline the hard words. Okay. Television, radio, telephone, car, table, chair, stone, and what is this? Shoes and clothes. Bicycle and clothes are non-living things. मतलब देखो, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, कार, टेबल, सोफ़ा, चेयर, बाइसिकल, क्लोथ्स, ये सब क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स हो गई. नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, गॉट इट. नाउ बॉयज, गर्ल्स, काउज, एलिफेंट, टाइगर्स, donkeys, snakes,
and trees are living things. Hence, we let that plants, animals and human beings are living things. For example, जैसे कि टेबल, चेयर, सोफा और कपड़े हो गए, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गए. क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं होती है. बट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, डोंकी, स्नेक्स, बॉयज, गर्ल्स, काउज, ये सब क्या हो गए? लिविंग थिंग हो गए. क्यों लिविंग थिंग हो गए? क्योंकि इनमें जान है. बिकॉज दे हैव लाइफ इन देयर बॉडी. ओके, समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट, natural and man-made things. Now we will see natural and man-made things. Among the things we see around us, some are made by man. They are like bicycle, car, chair, ball, radio and buildings. The things that are called man-made things. Now man-made thing means what? Man-made thing का मतलब क्या होता है? मैन मेड थिंग का मतलब वो होता है कि जो मैन ने बनाया, मतलब जो इंसान ने बनाया. इंसान ने क्या बनाया है? लाइक बाइसिकल, चेयर, कार, बॉल, रेडियो एंड बिल्डिंग्स. बिल्डिंग इज अ हार्ड वर्ड, सो व्हाट यू विल डू? यू विल अंडरलाइन द हार्ड वर्ड. ओके, सो दिस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स वो होती है जो मैन ने बनाया है, मतलब जो इंसान ने बनाया है. इंसान ने क्या क्या बनाया है? इंसान ने बाइसिकल बनाया, इंसान ने चेयर बनाया, कार बनाया, चेयर बनाया, बॉल बनाया, रेडियो बनाया, बिल्डिंग्स बनाया. तो इन सबको क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग्स. ओके, द थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. थिंग्स लाइक माउंटेन्स, सैंड, रिवर, clouds, sun, moon and stars which are found in natural as such which are made by man are known as natural things. Plants, animals and humans beings are also natural things. Now my dear students, जैसे यहाँ कार, बॉल, बिल्डिंग्स हो गई, वो इंसान ने बनाया तो वो हो गया मैन मेड थिंग्स. बट थिंग्स लाइक माउंटेन, सैंड, थिंग्स मतलब जैसे पहाड़ हो गया, बादल हो गया, मून हो गए, स्टार्स हो गए, रिवर्स हो गए या इंसान हो गए, तो इन सबको किसने बनाया? तो वो तो नेचुरल है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल थिंग्स. ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स. और नेचुरल थिंग्स में और क्या क्या आएगा? और क्या आएगा? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसान भी नेचुरल थिंग में ही आएगा. ओके, गॉट इट? नाउ नेचुरल लिविंग एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लाइफ. दिस थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल लिविंग थिंग्स. नाउ लाइक प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एनिमल्स हो गई, काऊ हो गया, गोट हो गई, इनमें जान रहती है. ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग, हमारे अंदर जान है. ओके, एंड प्लांट्स, प्लांट्स में भी जान रहती है. ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स बोलेंगे. क्यों लिविंग थिंग्स बोलेंगे? क्योंकि इनमें जान होती है. नाउ वी विल सी नॉन. Okay my dear students, you have understood natural living and natural non-living things. Okay, now come we will see common features of all living things. Common features like all living things, plants, animals and human beings have some special features in common. Means जैसे ही हम सब में कॉमन चीज़ें होती है. क्या कॉमन चीज़ें होती है? 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आईज है, ये सब कॉमन हो गई. But now we will see common features of all living things. All living things जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, इन सब में कॉमन क्या है? ओके, वी विल सी. लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर. ओके, नाउ व्हाट लिविंग थिंग्स टेक? फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स क्या लेते हैं? फूड, खाना और पानी लेते हैं. ओके, लिविंग थिंग्स टेक एंड वाटर टू लिव. Human things and all animals eat and drink daily. Plants so need water and mineral salt to live. Roots, plants absorb these things from the soil.
नाउ लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर, मतलब लिविंग थिंग्स जैसे खाना और पानी लेते हैं जीने के लिए। हम सब खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं ना। इन सेम दैट वे ऑल एनिमल्स ईट एंड ड्रिंक, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे एनिमल्स भी क्या खाते हैं, घास खाते हैं और पानी पीते हैं जीने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो एज ह्यूमन बीइंग्स ईट फूड्स, animals also eat grass. Why they eat food and why they eat grass? To live. Okay, now we will see next. Plants also need water and mineral salt to live. Roots plants absorb things from the soil. Non-living things do not take in food or water. Now as you know, plants take water and salt from the soil, means plants जमीन से पानी लेता है, ठीक है, और फिर सन रेज, दिस विल हेल्प देम टू ग्रो अप। जैसे झाड़ को हम पानी देते हैं तो वो पानी पीता है और सन रेज लेते हैं, तो इससे उनको एनर्जी मिलती है। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक इन फूड एंड वाटर। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे कि देख लो, फ्रिज, टीवी, कूलर, लाइट, फैन, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, पर ये लोग खाना नहीं खाते, ये ना पानी पीते ना खाना खाते। दे डू नॉट टेक फूड और वाटर। वाई? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड हियर वी टेक फूड एंड वाटर बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स। अंडरस्टूड? नाउ लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। ग्रो मीन्स बढ़ना। जैसे यू आर अ स्मॉल बॉय नाउ बट यू विल ग्रो अप टू बी अ मैन, जैसे आप अभी छोटे से लड़के हो पर बड़े होके आप बॉय यानी बड़े लड़के बनोगे, उसके बाद फिर मैन बनोगे। ओके, सो लिविंग थिंग्स ग्रो। अ बेबी ग्रो इनटू अ मैन और वुमन, जैसे आप छोटे हो, बड़े होके आप बॉय और मैन बनोगे। अ काफ बिकम्स अ काउ, मीन्स काऊ का जो बेबी है उसको क्या बोलेंगे, काफ। काफ बड़ा होके क्या बनेगा, काऊ बनेगा। अ कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, कैटरपिलर जैसे बटरफ्लाई लिव करती है, वो छोटी सी रहती है पर बड़े होते 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 वो क्या बनती है, बटरफ्लाई बनती है। सो शी ग्रो अप्स, सो लिविंग थिंग्स ग्रो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टर्न द पेज। See your page number 140. Okay, now living things react to changes in surroundings. Now we will see living things react to the changes in the surroundings. Animals and human beings can feel and react to the changes in their surroundings. Now animals and human beings can feel the changes, मतलब उनके हमारे आसपास जो चेंजेस होती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वो फील कर सकते हैं। ओके, वी कैन फील इट। प्लांट्स ऑल्सो कैन रिएक्ट टू चेंजेस इन सराउंडिंग्स, प्लांट्स भी जो सराउंडिंग्स होती है उसमें रिएक्ट करते हैं, मतलब जैसे उनके आसपास अगर सूखा है, पानी बिल्कुल नहीं है, तो प्लांट क्या कर जाते हैं, सूख जाते। बट अगर उनके आसपास यहाँ जमीन पर बहुत सारा पानी हो तो वो बढ़ने लगते और खिलने लगते। सो प्लांट्स ऑल्सो रिएक्ट। If we touch the leaves of the touch me not plant at once, it closes its leaves. touch me not का plant है, जैसे ऐसे touch me not का एक plant होता है, अगर उसको touch कर दिए तो वो अपनी leaves को बंद कर देता है, मतलब वो feel कर सकता है कि आप मुझे touch मत करो। अगर हमने उसे ऐसा touch कर दिया तो वो अपने leaves को ऐसे close कर देता है। ओके, The rain tree closes its leaves at sunset. जो रेन ट्री होता है, एक रेन ट्री नाम का ट्री है, वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है जैसे ही सूरज डूब जाता है। सो ही कैन फील द चेंज। व्हाट चेंज? दैट सन हैज सेट डाउन, जैसे सूरज डूब गया है तो मैं भी अपने लीव्स को क्लोज कर दूं, तो ये फील कर सकते हैं। सम फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट. This shows that plants also can react to the changes in surroundings. Now some flowers open in the morning and close at night. जैसे कोई जो flowers है मॉर्निंग में एकदम खिल जाता है पर जैसे ही शाम होती है वो एकदम
क्लोज हो जाता है, अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। सो फ्लावर्स कैन ऑल्सो रिएक्ट टू द चेंजेस, मतलब फ्लावर्स को भी चेंजेस समझ में आता है। क्या चेंज? कि अभी सूरज उगा है तो हम खिल जाएंगे, जैसे सूरज ढल जाएगा तो हम लोग भी अपने लीफ पेटल्स को क्लोज कर देंगे। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू द चेंजेस इन सराउंडिंग्स, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे टेबल, चेयर, लाइट, फैन, वो सराउंडिंग्स को रिएक्ट नहीं कर पाते। जो चेंजेस होते सराउंडिंग्स में उसमें रिएक्ट नहीं कर पाते। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी विल स्टॉप आवर टुडेज लेसन। I will continue the rest of the lesson in the next video. Okay? Okay my dear students, I hope you all understood this much lesson. मैंने आज आपको half lesson explain किया है. The rest of the half lesson I will explain you in the next video. हम इसका आधा chapter अपने next video में continue करेंगे. Okay my dear students? Okay, I hope you all understood the lesson. If you have any doubt, you can ask me. Okay, so till that time, stay safe, stay home, stay healthy, always keep smiling. I'll see you in the next video next time. Okay, till that time, take care. Bye bye.